لہذا میں اسٹارٹ کروں گا. The rebuilding of the tabernacle of David. داؤد کے خیمے کی تعمیر نو. داؤد کے خیمے کی دوبارہ تعمیر نو. آمین. اور اس حوالے سے میں آپ سے کئی میسیجز شیئر کر چکا ہوں اور کرسمس سے پہلے بھی ان میسیجز کو آپ کے ساتھ بیان کیا، بتایا کہ ریبلڈنگ آف ٹیبرنیکل کیا ہے، پھر صیون خدا کا مسکن کیوں ہے. پھر میں نے آپ کو اس خیمہ میں جو پرستار ہے اس کے حوالے سے بیان کیا. پھر میں نے اس کے پیٹرن کے حوالے سے بتایا کہ اس کا پیٹرن کیا ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ جو پرانے عہد نامہ میں 7 عبرانی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو پرستش ستائش کا بیان کرتے ہیں. اور جب میں بھی اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں حیران ہوا کہ ایگزیکٹلی جو کچھ آسمان پر پرستش اور ستائش کا لیول ہے، داؤد نے اسے قریباً پکڑنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہوا. جو اس بات کی دلیل ہے، اور سے سنیے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خدا دوبارہ داؤد کے خیمے کو کھڑا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے اس پرستش کے اس لیول کو پورے طور پر سمجھنے کی کوشش کی اور اس نے پکڑا. اور اگرچہ داؤد کے خیمہ کو ٹھیس پہنچی اور وہ جو ہے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا چلا گیا اور نیچے گر گیا، لیکن ان دنوں میں پھر سے خدا داؤد کے خیمہ کو جب کیا کر رہا ہے، کھڑا کر رہا ہے. آمین. آپ کو ان عبرانی الفاظ کا جو ہے پتہ ہونا چاہیے، اسپیشلی جو ستائش کے تعلق سے ہے، یہ پرستش کے تعلق سے ہے، ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. پہلا بولیے بارک. کیا ہے؟ بارک. اس کا مطلب کیا ہے؟ جھکنا. جھکنا. آپ جھکتے ہیں نا جب خدا، لہذا جب آپ ستائش کرتے تو جھکیے اس کی حضور میں. ٹھیک ہے، تعریف کیجیے، خوشی سے یاد کیجیے اس کی ساری برکتوں کو. یہ ہے اس کا جھکنا. یادیں، جس کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اس کی پرستش کرنا. جب آپ یادیں ورڈ استعمال بائبل مقدس میں استعمال ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اس کا اقرار کرنا اور اس کی پرستش کرنا. لہذا جب آپ خیمہ میں پرستش کے لیے آتے ہیں تو میں حیران ہوں کہ ہم اس بارے میں اقدام سے ایک ہی ویک میں بھول جاتے ہیں. ہاتھ کھڑا کیا کرے، جو ہے اپنے ہاتھ کو کھڑا کر کے اس کی ستائش کیا کریں، جھکا کر اس کی حضور میں ستائش کرنے کے لیے گھٹنے ٹیکا کریں اس کی ستائش میں. یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، یہ نظر آنی چاہیے کلیسیوں کے اندر. آپ جو ہے کسی پاسٹر کے لیے، کسی عام آپ کے ساتھ والے کے لیے نہیں کرنا. اپنی بیوی شکر تو میری بیوی کیا کہے گا، شوہر کیا کرے گا، میرے ساتھ والے کیا کہیں گے، یہ تو آپ خداوند کے لیے کر رہے ہیں. پھر میں نے تھرڈ ورڈ بتایا تو دے، اس کا مطلب ہے شکر گزاری کرنا. پھر ضمیر کے بارے میں بتایا کہ میوزک کے ساتھ کیا کرنا ہے، پرستش کرنا، جسے ہم مداح سرائی کہتے ہیں، یا پریز ود میوزک. جب آپ مداح سرائی کریں، مداح سرائی کیا کریں، پرستش جو ہے گیتوں، جب میوزک بج رہا ہوتا ہے، طبلہ، کانگو، ہارمونیم، آرگن، جھانج، تالیاں، اس کے ساتھ آپ گایا کریں. آمین. پھر ہے شاپاک. شاپاک اس کا مطلب نعرہ مارے. کبھی آپ ستائش کرتے ہوئے نعرے مارے، اونچی آواز کے ساتھ جو ہے آواز بلند کریں، جو دوسرے سے زیادہ آواز ہو نعرے کے ساتھ. آپ یہ دیکھیے کہ جب ستائش ہو رہی ہوتی تھی تو اسرائیل کے لیے نعرے لگتے تھے، بڑے بڑے اونچی آواز کے ساتھ نعرے لگتے تھے. ہماری کلیسیوں کے اندر بھی اسی طرح کی چرچز کے اندر جو ہے کوائر کے اندر ہاللویا کی آوازیں بلند ہونی چاہیے. جب گیت گائے جا رہے ہوں تو یہ آٹومیٹکلی، میں یہ اس سے آپ سکھانا، کنانیہ یہی کام کرتا تھا
کہ وہ سکھاتا تھا کہ یہ آپ کس طرح پروفیسی کو پکڑے. اگلی دفعہ میں بتاؤں گا کہ اس کی پاور کیا ہے. آپ اس لیول کو جب پکڑ پائیں گے, جب ان باتوں کو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ اگلے میسج کو بھی سمجھ پائیں گے جو اس سے اگلی دفعہ لوں گا. تو آپ نعرہ مارنا, آپ یا اونچی آواز کے ساتھ پکارنا یا جے ہو کرنے کی ہاللویا کے نعرے مارا کریں. آمین. ہاللویا. یہ ہے جسے ہاللویا ورڈ استعمال نکل رہا ہے جو عام ستائش اور پرستش کے لیے کہ ہم استعمال کرتے ہیں. جب ستائش کرتے ہیں تو یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. اور ساتواں جو لفظ ہے جو عبرانی زبان میں استعمال ہوا ہے, یہ انتہائی جو ہے اس کا اگلا حصہ جو بھی آج میں شیئر کرنے جا رہا ہوں, تہلّو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گانا اونچی آواز کے ساتھ زور سے گانا. آمین. اونچی آواز کے ساتھ اور پھر کیسے گانا ہے؟ زور سے گانا. ٹو گیو ہائی پریز. کون سی پریز دینا؟ اونچی آواز, ہائی پریز. اور یہ آواز قوموں کو معلوم ہو, یہ آواز جو ہے جس کی قوتوں کو معلوم ہو, جس سے کیا ہوتا ہے وہ لرزتی ہوں, وہ بھاگتی ہیں. آمین. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا نے یہ کیا کیا ہے, ہمیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے. اس نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ حمد کے لیے پیدا کیا ہے. کیسے حمد کرنے کے لیے؟ یہ حمد جو ہے تہلّو ہے. تہلّو ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اونچی آواز کے ساتھ گانا, یعنی اونچی آواز بلند کرنا. جب آپ حمد کرتے ہیں, آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ آپ اونچی آواز کے ساتھ اس کی کیا کریں؟ حمد کریں, ستائش کریں, پریز کریں. اور اب میں دیکھ حیران ہوں کہ جو ہے کئی جیسے جو ہے لب ہل رہے ہوتے ہیں, صرف جو ہے کئی جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئے ہوئے ہیں. کیسے, کس طرح؟ بولیے بولیے. حمد کر رہا ہے. جب آپ کہتے ہیں میں حمد کے لیے پیدا ہوا ہوں تو آپ نے کیسے حمد کرنی ہے؟ بولیے بولیے. یہ ایسے بولتی ہوں. کیسے؟ اونچی آواز کے ساتھ. کیسے؟ اونچی آواز کے ساتھ. پریز دی لارڈ. آپ کس میں پیدا کیے گئے ہیں؟ نو آپ اونچی آواز کے ساتھ پرستش کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. آپ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ اونچی آواز کے ساتھ. آپ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ اونچی آواز کے ساتھ. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. ہاللویا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہائی پریز اور مائٹی تھنڈرنگ پریز کیا چیز ہے. ہائی پریز جس کو میں نے تہلّو کے بارے میں بتایا تھا, یہ ان چیزوں کو آپ نے پکڑنا ہے, ان چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر لینا ہے. اور اسپیشل کوائر اور ساری کانگریگیشن اس میں انوالو ہوں, اس میں جو ہے وہ کیا کریں, اس کو پکڑیں. اور جب آپ ہائی پریز کی طرف جائیں گے تو آپ ہیونلی ورشپ کو پکڑنے کی کوشش کر پائیں گے. داؤد نے اس کو پکڑا ہے اور داؤد نے اپنے زبور میں اس کا ذکر کیا ہے. آمین. زبور 149 اس کی 6 آیت میرے ساتھ ڈالیے. ہاللویا. 149 اس کی 6 آیت. ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دو دھاری تلوار ہو. ان کے منہ میں کیا ہو؟ اور ہاتھ میں کیا ہو؟ پوری بائبل میں صرف یہی حوالہ ہے جو ہائی پریز کو پیش کرتا ہے. آمین. ان کے کیا ہو؟ ان کے منہ میں خدا کی تمجید ہو اور ہاتھ میں کیا ہو؟ دو دھاری کیا ہو؟ اس قسم کی جو ستائش جو ہے وہ تاریخی کی قوتوں کو سزا دینے اور انتقام لینے کا سبب ہوتی ہے. آمین. یہ ستائش جو ہے ہتھیار کی طرح ہے. یہ ستائش کیسی ہے؟ جو خدا کے لیے نفرت رکھنے والوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے. آمین. لہذا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دو دھاری تلوار ہو,
आगे लिखा था कि कौन से इंतकाम ले और उम्मतों को क्या करे, सजा दे। आप किस तौर पर दे सकते हैं? कौमों को और उम्मतों को सजा दें और उनसे इंतकाम लें। ये कैसे हो सकता है? खुदा की तमजीद करने से। और हाथ में क्या करेंगे? जो है वो हाथ में दो धारी तलवार हो और मुंह में क्या हो? खुदा की तमजीद हो। ये वो तमजीद है जिसे हम हाई प्रेज कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इससे पता चलता है कि सताइश का लेवल कैसा होना चाहिए है। जब कोई जो है सताइश के लिए जो है खुदा की हजूरी में आता है, वो किस तरीके के साथ खुदा की हजूरी में खड़ा हो या किस तरीके के साथ खुदा की हजूरी में बैठे, उनके मुंह में क्या होनी चाहिए? खुदा की तमजीद हो और हाथ में क्या होना चाहिए? बोलिए, दो धारी क्या हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये हमें आसमान पर जो है ये जो है हमें सताइश मिलती है। हम जो है इस सताइश में बहुत बुलंद जा सकते हैं, हम इस सताइश में बहुत ऊपर जा सकते हैं, जिसे हम हाई प्रेज तहल्लुह कहते हैं। आमीन। ये हमें आसमान पर मिलती है और दाऊद ने इसको पकड़ा है और यही वो कहता है कि जो है इज़राइल में भी और उसके लोग भी और सयोनी भी जो इसके खेमे में भी यही कुछ हो। आमीन। ज़बूर 148 उसकी दूसरी आयत में वो कहता है, ऐ उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, ऐ उसके लश्करों सब उसकी क्या करो? हम्द करो। आमीन। ये ऊंची आवाज है, ये ऊंचे लेवल की प्रेज है, ये हाई प्रेज है जिसे हम कहते हैं करो रब दी हुई बढ़ियाई। और आगे क्या लिखा है? सब आसमाना दी ऊंचाई। और मज़मूर 100 है ये 148 की पहली आयत में भी इसका जिक्र है। खुदा की हम्द करो, आसमान पर से क्या हो? हाई प्रेज। आसमान पर से क्या हो? खुदा की हम्द हो। प्रेज द लॉर्ड। फरिश्ते इस किस्म की प्रस्तुति से जुड़े हुए हैं, हाई प्रेज की वर्शिप से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। जब हम नबूवती तौर पर, प्रोफेसी के तौर पर जब हाई प्रेज में दाखिल होते हैं, तो फिर जमीनियों और आसमानों की प्रस्तुति में हमआहंगी पैदा हो जाती है, हार्मनी पैदा हो जाती है। और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब आप हाई प्रेज की तरफ जो है आपका ध्यान नहीं जाएगा, जब आपका पूरा मुंह नहीं खुलेगा, जब आपका पूरा दिल नहीं खुलेगा, जब आपके हाथ नहीं खड़े होंगे, जब आप झुकेंगे नहीं, जब आप नारा नहीं लगाएंगे शबाक तहल्लुह यादें, ये सब चीजों को आप यह लेकर आए अपनी सताइश में, ताकि क्या हो सके? यह आप खुदावंद के हुजूर में यह हाई प्रेज कर सके। आमीन। कौन सी प्रस्तुति कर सके? हाई प्रेज। आमीन। ऊंची ऊंची प्रेज तहल्लुह, यानी ऊंची आवाज के साथ जोर से गाना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाई प्रेज क्या करती है? जिंदगियों के लिए तारीकी के खिलाफ खुदा की अदालत जारी करती है। आमीन। अगर आप खुदा की अदालत को जारी करना चाहते हैं, यह तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ खुदा की अदालत को जारी करना चाहते हैं कि उसकी बादशाही हिल जाए और उसकी सारी पावर जो है, उसकी सारी ताकत जो है वो ज़ाहिर हो जाए, तो क्या करने की जरूरत है? हाई प्रेज। हालेलुया। क्या करने की जरूरत है? हाई प्रेज। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 25वां बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ी है। Thank you, Jesus Christ. 25वां बाब उसकी 7वीं आयत। और वो इस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है और उस नकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर कर देगा। कहां पर? उस पहाड़ पर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे नकाब उतर
करेगा कौमों पर। जो लोगों के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है तारीकी का, जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो नकाब लटका हुआ है कौमों के ऊपर, वो कैसे लटक सकता है? वो पर्दा कैसे हट सकता है? वो कैसे जो है नकाब उतर सकता है? हाई प्रेज, हालेलुया। जब आप हाई प्रेज करेंगे, जब आप 27 को जो हमद को बुलंद करेंगे, हमद जो है तहल्ला, हालेलुया, जब आप जो है हाई प्रेज करेंगे तो क्या होगा? आमीन। तो तारीकी की कुव्वत के खिलाफ खुदा की अदालत जारी होगी, तारीकी पीछे हटेगी। ये कौमों के ऊपर पर्दा लटक रहा है, यहूदियों के ऊपर जो है वो जो है तारीकी छाई हुई है। ये सयून में जो है ये काम हो सकता है, उस पहाड़ पर ये काम होता है। आमीन। उस पहाड़ पर क्या होगा बोलिए? वो उस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है और उस नकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर कर देगा। आमीन। लिहाजा जो है वो क्या होना है? जब तक कि जो है दाऊद का खैमा बहाल नहीं होता है, जब तक कि दाऊद का जो है वो खैमा खड़ा नहीं होता, तब तक कौमों के ऊपर पर्दा लटका रहेगा, तब तक जो है वो जो है ये नकाब जो है वो कौमों के ऊपर रहेगा। लिहाजा जब जहां जो है दाऊद का खैमा खड़ा होगा, दाऊद का खैमा रिस्टोर्ड होगा, दाऊद का खैमा की तरमीम न होगी, वहां तारीकी और नकाब लटक जाएगा। हालेलुया। आमीन। आप अगर देखते हैं कि चारों तरफ तारीकी नजर आ रही है, आप देखते हैं नकाब है और तारीकी छाई हुई है, तो क्या करना शुरू करें? बोलिए, करो रब दी हुन वडियाई। हालेलुया। करो रब दी हुन सबस्मानी तारीफ 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 करो बुलंदी पर। हालेलुया। जब आप हाई प्रेज की तरफ तवज्जो करेंगे तो फिर क्या होगा? यह उम्मतों के ऊपर और जो कौमों के ऊपर तारीकी और पर्दा छाया हुआ है वो लटक जाएगा। हम इवन दो घरों के ऊपर भी पर्दे पड़े हुए हैं, यह घरों के ऊपर भी नकाब पड़े हुए हैं, और वहां पर क्यों जो है ये तारीकी और पर्दा है? क्योंकि वहां पर जो है वो मैं हाई प्रेज, तो ये हाई प्रेज के ऊपर जाकर जो है ये पर्दे और नकाब लटकते हैं। ये स्टाइश ही नहीं है, यहां तक कि जो है उसे मुबारक कहना नहीं है, उससे उसकी हुजूर में हाथ खड़ा करना नहीं है, उसके सामने झुकना नहीं है, उसके हुजूर में शुक्रगुजारी नहीं करना, उसके हुजूर में नारा नहीं मारना, उसके हुजूर में यह वो तबले बाजे के साथ स्ताइश करना नहीं है, उसके हुजूर में यह ऊंची आवाज के साथ आवाज बुलंद करना नहीं है, और उसके हुजूर में यह है वो रोजाना स्ताइश और मस्तश नहीं है। वहां पर क्या हो सकता है? तारीकी और पर्दा होगा, वहां पर नकाब होगा। क्या अगर आप चाहते हैं कि आप इर्द गिर्द के पर्दों को उठाना चाहते हैं, आप जो है नकाब उतारना चाहते हैं, तो क्या करने की जरूरत है? बोलिए नहीं, ये बोलिए तारीफ करो बुलंदी पर। क्या करो? गाएंगे, आइए करो रब दी हुन वडियाई। मैं देखना चाहता हूं कि कितनी यह जोर से गा सकते हैं। हाँ, हालेलुया 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 हालेलुया। इतनी आवाज बुलंद होनी चाहिए कि मालूम पड़े कि हाई प्रेज हो रही है। काश यह इस लेवल को हम जो है पकड़ सके, ताकि जो है आसमानी और जमीनी वर्शिप एक बराबर हो सके। 144-48 ज़रूर करो रब दी हुन वडियाई, एक बड़ी पिच के साथ यह खुदावंद की सताइश होनी चाहिए, यह वो पूरी जारी के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितनी आपकी ताली बजेगी और कितने आपके हाथ बुलंद होंगे और इस दौरान में कितने नारे बोलेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। करो रब दी हुन वडियाई, करो रब दी हुन वडियाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
Mighty thundering. Amen. कौन सी thundering? Mighty thundering. Revelation 19 chapter verse 6. मुकाशवाक 19 बाब उसकी छठी आयत है. पढ़िए कोई. मुकाशवाक 19 बाब और उसकी छठी आयत है. किसी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गरजों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है. Praise the Lord. फिर मैंने बड़ी जमायत की सी आवाज. कौन सी जमायत कैसी आवाज सुनी? बड़ी जमायत की सी आवाज. ये एक ही आवाज से, लेकिन बड़ी जमायत की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और तीसरी बात सख्त गरजों की सी आवाज सुनी. कैसी आवाज सुनी? माइटी थंडरिंग, सख्त गरजों की सी आवाज. कैसी आवाज? सख्त गरजों की सी आवाज सुनी. क्या? कौन सी के? क्या आवाज सुनी? क्या आवाज सुनी? हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है. आमीन. गर्ज, जोरावर
आवाज खुदा के जलाल को पेश करती है। आमीन। और ज़बूर 29 उसकी 30 आयत में क्या लिखा है? Praise Jesus Christ। हम अपने आवाजों को, अपने गलों को फाड़िए अपने खुदावन के लिए, अपने यीशु के लिए जो बादशाही करता है। ज़बूर 29 वर्ष 3 क्या लिखा है? खुदावन की आवाज बादलों पर है, खुदाए जुल जलाल गरजता है, खुदावन दलदार बादलों पर है। आमीन। खुदा की आवाज कहां पर है? बोलिए। माइटी थंडरिंग, हालेलुया, बादलों पर है। थंडर्स। खुदा जुल जलाल क्या करता है? बोलिए। गरजता है। खुदावन दलदार बादलों पर है। हमारी सिताइश सुनिए, हमारी सिताइश बादल की गरज की मानद होनी चाहिए। हमारी सिताइश कैसी होनी चाहिए? बादल की गरज की मानद। आमीन। हमारी सिताइश बादल की गरज की मानद हो सकती है। आमीन। हमारी सिताइश खुदा के बादल की गरज की मानद होनी चाहिए, और फिर ये बादल की गरज की मानद हो सकती है जब खुदा का जलाल हमारे दरमियान में आ जाए। जब खुदा का जलाल हमारे दरमियान में आ जाएगा तो क्या होता है? फिर बादल की गरज आती है और ऐसी लड़ाई जो है वो वकूዕ में आती है। बड़े से बड़ा दुश्मन, बड़े से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी ताकत जो समझी जाती है कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जब आप गरज की सी आवाज बुलंद करते हैं, जब उस दौर पर सताइश शुक्रगुजारी को बुलंद करते हैं, जब आपके हाथ उठ जाते हैं, जब आपकी आवाज नारा बन जाती है, जब आपकी आवाज जो है हाई पिच पे पहुंच जाती है, जब आप जो है झुक जाते हैं, जब आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं, then what happened? ज़बूर 18 उसकी 13 से 17 आयत तक पढ़ेंगे। ये दाऊद की दुहाई का ज़बूर है। 18 से 17 आयत तक पढ़ेंगे। ज़बूर 18 उसकी 17वीं आयत। और खुदावन आसमान में गरजा, हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई, ओले और अंगारे उसने अपने तीर चलाकर उनको परगंदा किया, बल्कि ताबड़तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। तब तेरी डांट से खुदावन, तेरे नथनों के दम के झोंके से पानी की थाह दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार हुई। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरी अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत जबरदस्त थे। आमीन। अब देखिए कि खुदा जो है वो उतर आया, ठीक है, वो आसमान में गरजा, खुदा ने आसमान में गरजा, हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई, ओले और अंगारे उसे तीर चलाकर उनको परागंदा किया, बल्कि ताबड़तोड़ बिजली से उनको क्या की है? बोलिए, शिकस्त दी। तब तेरी डांट से खुदावंद दाऊद कहता है, तेरे नथों के दम के झोंके से पानी की थाह दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार हुई। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे क्या कर लिया? थाम लिया। मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो क्या थे? बोलिए, मेरे लिए नहायत जबरदस्त थे, नहायत
जबरदस्त थे। जब नहायत जबरदस्त हो तो फिर माइटी थंडरिंग की जरूरत होती है। आमीन। जब जो है जबरदस्त दुश्मन हो और जोरावर दुश्मन हो, अदावत रखने वाले जोरावर हो, जबरदस्त हो, तो फिर कैसी जरूरत होती है कि खुदा गरजे। हालेलुया। ये खुदा के तख्त से यह गरजे आवाजें निकलती हैं। आमीन। खुदा के तख्त से क्या बाइबल मुकद्दस फरमाती है, आवाजें और गरजे निकलती हैं। और खुदा जब तक नशीन ना हो, जब तक जो है वो मौजूद ना हो, ये थंडरिंग जो है वो साउंड्स जो है कभी भी नहीं निकल सकती हैं। अगर आप थंडरिंग साउंड्स को, माइटी थंडरिंग साउंड्स को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करना चाहते हैं तो आप ज़बूर 18 में इसको देख सकते हैं कि दाऊद को ऐसा एक्सपीरियंस कैसे मिला है। थंडरिंग एक्सपीरियंस, थंडरिंग साउंड जो उसने सुनी है, उसने कहा है खुदा आसमान में गरजा है, हफ्तारों ने अपनी आवाज सुनाई है, ओले आए हैं, अंगारे आए हैं, तीर चले हैं, ताबड़तोड़ बिजली जो है वो चमकी है। हालेलुया। डांड कलाम हुआ है, खुदा जो है वो गजबनाक हुआ है। नथनों से क्या निकला है, जो है वो धुआं निकलना शुरू हुआ है उसके जो है नथनों से। इतना गजबनाक कैसे खुदा हो गया, इतना जो है वो जबरदस्त तरीके से जो है ये इजहार कैसे होना शुरू हुआ है। बोलिए कैसे, हाई प्रेज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस अजीज भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ऐसी साउंड या आप अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करें, ले ये दाऊद को इसका एक्सपीरियंस है। वाई? इसलिए कि उसके खानों में जो है वो अहद का संदूक है। उसके खानों में क्या है, आवाज है। उसके खाने में 24 आवर्स खुदा की प्रस्तुति और सताइश होती है। वो उसे फतूहात क्यों ऐसी मिल रही हैं, उसे ऐसा जो है ऐसी बरकतें क्यों मिल रही है। वो इस बात को समझता है कि मुझे खुदा के लिए आवाज बुलंद करनी है। और कौन सी आवाज बुलंद करनी है, हाई प्रेज। थंडरिंग साउंड जो है आप जब तक नहीं निकालेंगे, आप मैच कीजिए उस साउंड का, आसमानी गर्जों का और जमीनी गर्ज वो इसके अंदर हम आंगी पैदा कीजिए, तालमेल पैदा कीजिए। जैसे जो है वो हारमोनियम तबला का है, जैसे जो है ऑर्गन तबला बजता है, उनके दरमियान में जब तक तालमेल नहीं होता है तब तक सही आवाज निकलती नहीं है। आसमानियों की आवाज और जमीनियों की आवाज एक हो जाए। हालेलुया। रहना आप क्या करेंगे, ताकतवर से ताकतवर दुश्मन क्या होगा, वो उसे भागने की भी जो है वो राह नहीं मिलेगी। वो क्या होगा, वो भाग जाएगा। दाऊद के सारे दुश्मनों का ऐसा ही हाल हुआ था। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आप इस तौर पर जो है वो खुदा की प्रस्तुति करें? आपका दिल चाहता है आप इस तरह करेंगे? आपको करना चाहिए। आमीन। आपके ऊपर हाथ बता के मेनू रब बचावेगा। ओहो डूंगे पानी बिचो मेनू खींचे ओ जोर मेरा प्यार और नाल है। ये वाला ये जरा हिस्सा गाइए और जोरदार आवाज के साथ है जब इजहार कीजिए। और आप जब बातों किसी कर्ज की आवाज को जब अपने अंदर महसूस करना शुरू कीजिए, तालियों के साथ, आवाजों के साथ उसकी प्रस्तुति होना शुरू हो।
کرے، ستائش کرے، کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ آسمان پر یہی کام ہوتا ہے، ستائش اور پرستش اور حمد کا۔ جب میں لاسٹ میسج اس سیریز کا سناؤں گا، آپ کو اس جگہ کے اوپر کھڑے ہونا ہوگا، اور اگر اس جگہ کے اوپر آپ، یہ میں بنیاد بنا رہا ہوں ستائش کی، پرستش کی، کیونکہ خدا ہمیں اسی کے لیے کھڑا کرنے والا ہے۔ آمین۔ آپ کو اس کی پریکٹس کرنا ہوگی اور آپ کو ڈھیلے نہیں ہونا ہوگا۔ اگر آپ ڈھیلے رہیں گے تو خدا کو اس سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور آپ خدا کی جو ہے خدا کی آواز کا، بادل کی گرج کی سی آواز کا آپ ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ بھی گرجتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی گرجتا ہے، لیکن ہماری جو ہے خدا کی آواز کی گرج اس سے کئی گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے وہ آوازیں بلند ہی نہیں کی ہیں، ہم نے وہ آوازیں نکالی ہی نہیں اپنے اندر۔ آپ اپنے اندر ایسا پوٹینشل اور ایسا زور، ایسی قوت رکھتے ہیں، آپ اپنے اندر گرج کی سی آواز رکھ سکتے ہیں۔ آمین۔ آپ اپنے اندر گرج کی سی آواز رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو نکالا نہیں ہے، ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، خدا کی آواز کو نکالیے، خدا کے لیے اس آواز کو جو ہے نکالیے۔ آمین۔ مکاشفہ 4 باب اس کی 5ویں آیت میں یہ ایک خوبصورت بات لکھی ہے، ہم اسے پڑھنا چاہیں گے۔ Praise the Lord. مکاشفہ کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 5ویں آیت۔ اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ آمین۔ Praise the Lord. ہم اس لیول کی ستائش کی توقع کر سکتے ہیں، آمین، ہم توقع کریں جس میں گرج کی سی آواز ہو، آمین، اور وہ ہمارے درمیان میں تک نشین ہو۔ بادل کی گرج آسمان سے آتی ہے، ہم نے یہ پڑھی ہے کہ وہ جو ہے وہ آسمان پر تک نشین ہے، اور ہم آسمانی عالم میں جو ہے وہ ہیونلی ریلم جسے بولتے ہیں، اس عالم میں جو ہے داخل ہو سکتے ہیں جب ہم جو ہے ایسا تجربہ کرنا شروع کر دیں۔ آمین۔ ہم اس تجربے کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس ریلم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو آرگن ہے یا طبلہ ہے یا چھانچ ہے، یہ گرج کی سی آواز پیدا کرتے ہیں۔ آمین۔ گرجدار جو آواز ہے یہ گرجدار میوزک کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ آمین۔ یہ زیادہ آواز اونچی کرنے سے نہیں کہ ہم زیادہ اونچی جو ہے وہ میوزک کو کر دیں تو یہ اس سے زیادہ یہ گرج پیدا کر رہی ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب یہ آواز اور جو ہے آواز گرجدار ہو، اور جب جو ہے وہ میوزک اس لیول تک پہنچ جائے جس سے گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے، آمین، اس سے پھر جو ہے آپ جو ہیونلی جو ہے وہ گرج کے ساتھ تال میل کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو زمینی کوائر ہے، جو سیونی کوائر ہے، وہ اس لیول کو سمجھے، وہ اس آواز کو نکالے، اس ساؤنڈ کو، اس مائٹی تھنڈرنگ ساؤنڈ کو نکالے، تاکہ جو ہے وہ آسمان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا میل ہو سکے۔ آمین۔ اور آپ کو حقیقت بتاؤں کہ جب ہماری ستائش اور پرستش اس لیول میں داخل ہو جاتی ہے تو خدا جو ہے اپنی جو ہے کرک کی آواز سنائی دیتا ہے، سناتا ہے۔ آمین۔ آپ اس کا تجربہ پہلا سیموئیل اس کا 7واں باب اس کی 10ویں آیت میں کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ جانیں گے کہ جب آپ پرستش کرتے ہیں اور جب ستائش کرتے ہیں تو کیسا تال میل ہوتا ہے۔ پہلا سیموئیل 7واں باب اس کی 10ویں آیت ہے۔ اور جس
जिस वक्त सैमुएल उस सोख्तनी कुर्बानी का गुजरान रहा था, उस वक्त फिलिस्ती इसराइलियों से जंग करने को नजदीक आए। लेकिन खुदावंद फिलिस्तियों के ऊपर उसी दिन बड़ी कड़क के साथ गरजा और उनको घबरा दिया और उन्होंने इसराइलियों के आगे शिकस्त खाई। आमेन। ये किस तरीके से ऐसा होता है? ये किस मायनों में आप जो है कड़क की आवाज जो है वो सुन सकते हैं? आप जो है खुदा के कड़क की आवाज जो है वो सुनी उन्होंने, और ये कड़क की आवाज जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद फिलिस्तियों के ऊपर उसी दिन बड़ी कड़क के साथ क्या हुआ? वो गरजा। आमीन। और उनको घबरा दिया, और उनको क्या कर दिया? इसका रीजन क्या थी? इसके पीछे जो है वो वजह क्या थी? इसलिए कि वो सोख्तनी कुर्बानी पेश कर रहे थे, इसलिए कि वो खुदावन के लिए प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए कि वो खुदावन के हुजूर में अपने पानी उंडेल रहे थे। आमीन। ये उसे जो है वो मुबारक कह रहे थे, वो अपना दिल उसके सामने उंडेल रहे थे, वो यादें कर रहे थे, वो अपने हाथ उसके सामने जो है वो फैलाए हुए थे। आमीन। वो इकरार कर रहे थे कि तू हमारा खुदावंद है। वो सोख्तनी कुर्बानी पेश कर रहे थे, वो प्रस्तुत कर रहे थे, और जो प्रस्तुत हो रही थी तब क्या हुआ? खुदा उनके दुश्मनों के ऊपर बड़े कड़क के साथ गरजा। आमीन। उनके ऊपर कैसे कड़क? बाइबल मुकद्दस में लिखा बड़ी कड़क के साथ वो उनके ऊपर गरजा। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि जो है खुदा की आवाज जो है वो बड़े कड़क के साथ जो दुश्मन के ऊपर आए, तो इसके लिए क्या करना होगा? हाई प्रेज की तरफ आपको तवज्जो करना होगी, आपको जो है अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, आपको जमात की सी आवाज पैदा करना होगी। हालेलुया। और वो जमात की सी आवाज कैसी है? एक दफा फिर बोलिए, जमात की सी आवाज कौन सी है? हालेलुया। कौन सी? बोलिए हालेलुया। वो एक आवाज होके हालेलुया। फिर से हालेलुया। Oh, praise the Lord. चर्च भी ऐसी बड़ी बतूहात को हासिल कर सकता है अगर हम गरजदार बातों की सी प्रस्तुत करें, गरजदार जो है वो प्रस्तुत करें। हालेलुया। कैसी प्रस्तुत करें? बोलिए माइटी थंडरिंग साउंड जो है, वॉइस जो है वो पैदा करें जो आसमानों के ऊपर होती है, जिससे जो है अदालत जारी होती है, जिससे दुश्मन को जो है वो पकड़ा जाता है, जिससे दुश्मन को घबरा दिया जाता है, उसके ऊपर खौफ तारी करना है और उसके जो है उसको पीछे हटाना है, तारीकी की कुव्वतें जमीन के ऊपर, ईमानदारों के ऊपर, कौमों उम्मतों के ऊपर जो है वो काम कर रही है। इसको हटाने का, इसको पीछे हटाने का एक ही तरीका है। बोलिए वो क्या है? हाई प्रेज, थंडरिंग प्रेज। आमीन। कौन सी प्रेज? बोलिए थंडरिंग प्रेज एंड हाई प्रेज। ये दुश्मन को जो है वो पीछे कर देगी, उसे धकेल देगी पीछे कि वो आपके करीब भी नहीं आएगी। मैंने आपको बारहा कहा है, दाऊद एक भी जंग नहीं हारा है। उसकी रीजन क्या है? उसकी वजह क्या है? थंडरिंग जो है वो आवाज, वो उसकी रीजन क्या है? हाई प्रेज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और जब दाऊद के दिल को आपके सामने रखना चाहता हूं, वो चाहता क्या है? जब आप ज़बूर 117 पढ़ते हैं, जब निकालिए मेरे साथ ज़बूर 117। I worship you, Jesus Christ. ये सबसे छोटा ज़बूर है। अच्छा, ये ज़बूर 117। ए कौमों, सब खुदावन की हम करो, ए उम्मतों, सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफ़क़त है और खुदावन की सच्चाई अबदी है। खुदावन की हम करो।
अब आप देखिए, oh praise the Lord, all your nation praise him, all your people. इसमें दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं praise के लिए, oh praise hallel. वर्ड इस्तेमाल the Lord, all your nation praise Shabbat, यानी ऊंची आवाज के साथ. all your nation praise, यानी तमाम उम्मतों सब उसकी सताइश करो. यानी ये सताइश में वर्ड इस्तेमाल हुआ शबाक. शबाक का क्या मतलब है? ऊंची आवाज के साथ उसकी क्या करो? ये प्रस्तुत करो. ये सबसे छोटा ज़बूर है दाऊद का. ये कौमों को उभारा गया है कि उसकी क्या करो? हमद करो. रूमियों में पौलुस रसूल ने ये 15 बाब उसकी 11वीं आयत में इसको कोट किया है. मैं उसका भी हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूं. और वो शुक्रगुजारी करता है जब उम्मतों ने कबूल किया. उसने कहा 9वीं आयत में, और गैर कौम भी रहम के सबब से खुदा की हमद करे, जिनाके लिखा है कि इस वास्ते मैं गैर कौम में तेरा इकरार करूंगा और तेरे नाम के गीत गाऊंगा. ये क्राइस्ट के हवाले से बात की गई है. ज़बूर जब रूमियों 15 बाब उसकी 11वीं आयत में पौलुस रसूल भी इसका हवाला देता है, जो ज़बूर 117 का. आमीन. ज़बूर 117 दाऊद के दिल को पेश करता है. दाऊद के क्या पेश करता है? उसके हार्ट को पेश करता है. उसकी ख्वाहिश है कि सिय्योन में सारे कौमें खुदा की प्रस्तुति करें. सिय्योन में क्या हो? सारी कौमें खुदा की प्रस्तुति करें. और ये एक मिशनरी रूह है जो बुनियादी तौर पर चर्च की बुनियाद है बेसिकली. आमीन. और ये इरशाद आज़म भी यही है कि इरशाद आज़म किसके लिए है? कौमों के लिए, कि कौमों में जाकर क्या करो? मुनादी करो और उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से उसकी जो है उसको क्या करो? बपतिस्मा दो. ठीक है. इरशाद आज़म क्या है कि हम कोई को ढूंढें. ज़बूर 117 भी दाऊद 27 के जरिए से कौमों को जो है वो क्या करता है? दावत देता है. आमीन. 27 ये एवेंजलिज्म को पेश करती है. आमीन. 27 itself evangelism. Amen. Praise is evangelism. जब आप 27 करते हैं, जब आप प्रस्तुत करते हैं, ये एवेंजलिज्म है. और दाऊद ने यह 27 के जरिए से क्या किया है? कौमों को दावत दी है. हालेलुया. Praise the Lord. और दाऊद 117 में इस बात की गवाही देता है कि हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ 27 और प्रस्तुत यह इस्राएल के लिए महदूद नहीं है. और वो नहीं चाहता कि 27 और प्रस्तुत जो है वो इस्राएल के लिए महदूद हो. वो सारी कौमों को इसमें शामिल करना चाहता है. आमीन. 27 के लिए किसको जमा करना चाहता है? सारी कौमों को इसमें शामिल करना चाहता है. और इसलिए आप जानते हैं कि जो यरूशलेम में जो मीटिंग हुई उसका जो मौक़िफ़ यही था कि कौम में चर्च के अंदर दाखिल हो रही हैं. और इसमें इसका जिक्र किया गया कि तब क्या दाऊद क्या करेगा? वो दाऊद के ख़ैमे को खड़ा करेगा जिसमें वो उम्मतें गैर कौमें उसमें शामिल हो जाएंगी. आमीन. और दाऊद के ख़ैमे की यही पावर है. आमीन. और ये इसके ख़ैमे के ख़ैमे के अंदर हर एक उम्मत को आने की दावत है. ये इतना बड़ा ख़ैमा है. आमीन. और इसके लिए इतनी पावर है कि ये गैर कौमों और यहूदियों के दरमियान दीवार को तोड़ता है. आमीन. हर तरह की तहजीब और हर तरह की सकाफत को दूर करके वो कहता है आओ और खुदा की हमद करो. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रस्तुत और 27 ये सिय्योन में महदूद नहीं है. सिय्योन वो जगह है जहां पर दाऊद का ख़ैमा है. और दाऊद के ख़ैमे में जो है हर एक शख्स को दावत है कि वो आए और वो जो है हमारे खुदा की सताइश करे. आमीन. हालेलुया.
चाहता है, वो उम्मतों के दरमियान में सुकूनत करना चाहता है। जहाँ दाऊद का खैमा खड़ा हुआ है, वहां पर खुदा सुकूनत करता है और वो चाहता है कि वहां पर हर एक शख्स आए। लिहाजा दाऊद की ख्वाहिश ये है कि इन आवाजों में, इस सताइश में, हाई प्रेस में, थंडरिंग प्रेस के अंदर जो है सिर्फ मैं ही शामिल ना हूं, मैं सिर्फ इस्राएली शामिल ना हूं, बल्कि कौन कौन शामिल हो, इसमें उम्मतें भी आए। आमीन। हर एक शख्स मिलकर हमारे खुदा की सताइश करे। इसलिए वो दाऊद ज़बूर 17 में क्या करता है, ऐ उम्मतो खुदावन की क्या करो, हम्द करो। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों, हम किस तरीके से उम्मतों को जो है वो हम्द के लिए बुला सकते हैं, ये उस वक्त होगा जब हम हाई प्रेज करेंगे। कौमों के ऊपर नकाब पड़ा हुआ है, उम्मतों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। लिहाजा ये इस पहाड़ पर इस तरह की सताइश को बुलंद किया जा सके ताकि उम्मतों और कौमों के ऊपर पर्दा जो पड़ा हुआ है, वो नकाब जो पड़ा हुआ है, वो उतर जाए और कौमें आकर हमारे खुदा की सताइश करे। हालेलुया। कैसी सताइश प्रस्तुत करे, बोलिए हाई प्रेज। कैसी प्रस्तुत करे, ऊंची आवाज के साथ उसकी प्रस्तुत करे। मैं फिर एक हवाला पढ़ूंगा और आप उसके बारे में आवाज बुलंद करेंगे। मुकाशवा 19वां बाब वही पढ़ूंगा। लिखा है, फिर मैंने बड़ी जमायत की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की आवाज सुनी के क्या आवाज सुनी, आवाज सुनी। फिर से आप थके हैं, आपने थकी आवाज सुनाई दे रही है, ये थकी आवाज सुनाई दे रही है। आवाज बुलंद कीजिए, आप खाकर आवाज बुलंद कीजिए। बादशाही करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनकी सताइश करें। अपने हाथ उसी की तरफ बुलंद किए रखें। Worship you Jesus Christ। हम क्यों मुझे है शर्मा जाए, हम क्यों झिझके, क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे गुनाह माफ किए हैं। उसे हमारे दिलों को खोल दिया है, उसे हमारे दिलों को खोल दिया है, उसे हमारी आवाज़ों को गाना सिखा दिया है। हम मातम कर रहे थे, उसने मातम को नाच में बदल दिया है। हमारी जुबान पर गिरात लगी हुई थी, यीशु मसीह के वसीले से, उसके खून की कुदरत से, पाक की कुव्वत से, उसके कलाम की कुदरत से ये गिरा खुल गई है। बस हमारी जुबान हमारे मुंह में नाचेगी और उसकी सताइश करेगी, क्योंकि वो खुदावंद है, वो बादशाही करता है, वो मुझ में बादशाही करता है, वो चर्च में बादशाही करता है, वो उम्मतों के दरमियान में, कौमों के दरमियान में, कायनात में वही कहता बादशाह है, वो तख्त नशीन है, वो अपने तख्त पर बैठा है। आइए उसकी सताइश, उसकी प्रस्तुति करें। हालेलुया। ऐ खुदावन, मैं तो शुक्र करता हूँ, तेरी सताइश तेरी हम्द करता हूँ कि तू भला है और तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पूछते रहती है। तेरा शुक्र हो कि हम भी गैर कौम के थे, ऐ खुदा, हम भी ऐ खुदा उन उम्मतों में से थे जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था। तूने हमारे पर्दे को दूर कर दिया और अपनी खुशखबरी की रोशनी हम पर पड़ने दी और यूं ऐ खुदा हमारे दिल रोशन हो गए। बस हम तेरी सताइश करेंगे और तेरी प्रस्तुति करेंगे और तेरी हम्द करेंगे और तेरा जलाल अपनी जिंदगी से जाहिर करेंगे। हमारी आवाज़ नहीं थमेगी और हमारी आवाज़ कम नहीं होगी, बल्कि ये ऊंची से ऊंची होते होते ये गर्जदार आवाज़ बन जाएगी। हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, बुआई के साथ हो, बहनों भाइयों के साथ हो, हमारी सारी कांग्रेगेशन के साथ हो, ये नारों के साथ, ये आवाज़ों के साथ, ये हाथ उठाकर, ये झुककर, ये शुक्रगुजारी के साथ तेरी सताइश और तेरी हम्द करने वाले सारा जलाल तुझे, खुदा यीशु मसीह के नाम से।